So hello everyone. So today I am going to discuss one of the important part of trigonometry which is required in your objective exam, not in the subjective exam. It is mainly required in objective. Okay. So today I am going to discuss about the periodicity of trigonometry. Okay. It is mainly important for JEE Mains, Advanced, means all kinds of entrance exams. Okay, this topic is mainly important for all kinds of entrance exams. Okay, so periodicity of trigonometry. Now, what do you mean by periodicity? ये periodicity समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि graphically you can easily understand. ठीक है, ग्राफ से हम लोग थोड़ा सा जल्दी समझ सकते हैं कि periodicity क्या होता है. Actually, a periodic function is a function. Listen carefully. First of all, I am giving the definition. A periodic function is a function that repeats its values at regular intervals. A periodic function is a function that repeats its values at regular intervals. For example, trigonometric functions. We all know that the trigonometric functions repeats its values at an interval of 2 pi radian. है ना? At an interval of 2 pi radian. All trigonometric functions repeats its values at an interval of 2 pi radian. क्योंकि one complete revolution is equal to, we all know, 360 degree. 360 degree. Or it can be written as 2 pi radian also. Yes or no? So since one complete revolution is equal to 2 pi radian, which means we can say that all trigonometric functions repeats its values at radian of 2 pi. At 2 pi radian. ठीक है? All trigonometric functions. क्योंकि देखो 2 pi radian के बाद और 360 डिग्री के बाद फिर से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा. मतलब 2 पाई रेडियन के बाद फिर से रिपीट होगा ना वो फंक्शंस का वैल्यूज. कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो आफ्टर 360 डिग्री all the values will repeat again, because after 360 degree there will be no new quadrant. 360 के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, then second quadrant, then third quadrant, then fourth quadrant. So that means a periodic function is a function that repeats its values at regular intervals, and one complete interval is equal to a period. ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है पीरियड, बिकॉज 2 पाई रेडियन के बाद फिर से वो वैल्यूज रिपीट होगा. तो ये सबसे आसान तरीका होगा कि ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करना, पीरियडिसिटी. ठीक है, I will explain graphically also. Okay, so trigonometric function repeats its values at an interval of 2 pi radian. Okay, and what is the use of this periodicity? देखो, यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं, मेडिकल लाइन में भी ज्वाइन करने वाला बहुत सारा स्टूडेंट्स है, तो ये पीरियडिसिटी सबके लिए जानना जरूरी है. ठीक है, सो पीरियडिसिटी का यूज, दैट इज पीरियडिसिटी का यूज क्या होता है? Periodic functions are used throughout science to describe oscillation, waves, etc. Waves means you can say sine wave, cos wave. There are mainly 6 trigonometric functions. So वो functions का ग्राफ कैसा होता है, sine function का ग्राफ कैसा होता है, cos function का ग्राफ कैसा होता है. These are all wavy कर्व शेप. ठीक है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. अभी तक क्लास 10 में ग्राफ का जो टॉपिक था वो लाइक स्ट्रेट लाइन था. यस और नो? सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो द पीरियडिक फंक्शंस आर यूज्ड थ्रू आउट साइंस टू डिस्क्राइब ऑसिलेशंस, जो फिजिक्स में यूज होगा, ऑसिलेशन. वेव्स, वो भी फिजिक्स में चाहिए, वेव्स. ठीक है, एक्सेट्रा. So these are the uses of
periodic functions, right? So once again I'm repeating the definition. A periodic function is a function that repeats its values at regular intervals, like a trigonometric function. So we all know that the trigonometric functions repeats its values at an interval of 2 pi radian, because after 2 pi radian it will repeat again, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, which means the values are also will get the same, right, after 2 pi radian. Okay, अच्छा, तो अभी ग्राफिकली जो मैं एक्सप्लेन करूंगा पीरियडिसिटी, ठीक है, सुन लो मेरा बात, पीरियडिसिटी ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. सो टू ड्रॉ, listen, to draw the graph of any trigonometric function, first we should know the amplitude of the given function. We should know the amplitude of the given function, amplitude of the given function. Okay, now what is amplitude? What is amplitude? Amplitude of a function, listen, amplitude क्या है ये मैं बता रहा हूं. Amplitude of a function is the amount by which the graph of the function travels above and below its midline. Once again I am repeating, what is amplitude? Amplitude of a function is the amount by which the graph of the function, जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो फंक्शन के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, by which the graph of the function travels above and below its midline. ठीक है, you know how to draw a graph जिसमें x एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वी यूज्ड टू से x एक्सिस एज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड y एक्सिस. वही पैटर्न से ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वही कार्टेशियन प्लेन में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वेदर इट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लाइक स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन का ग्राफ और कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो कार्टेशियन प्लेन के थ्रू से ही ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. ओके, सो देयर इज नो चेंज इन द ग्राफ ओनली, ठीक है. सो वो कार्टेशियन और एक्स वाई प्लेन से ही ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? An amplitude of a function is the amount by which the graph of the function travels above and below its midline. ठीक है, जो above और below its midline बारे में बोला गया है, वो midline का मतलब है कि जो horizontal line होगा, that horizontal line is called the midline. Okay, that horizontal line is called the midline. Okay, so to draw the graph of any trigonometric function, first thing you should know that the amplitude of the given function. ठीक है, तो वो amplitude कैसे निकालना है वो मैं अभी बताऊंगा और उसके बाद ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, ठीक है. So suppose there is a function y is equal to sin x. ठीक से देख लेना, ये ग्राफ अगर क्लियर हो गया तो मतलब पीरियडिसिटी भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ग्राफ अगर क्लियर हो गया तो पीरियडिसिटी भी क्लियर हो जाएगा. तो लेट अस कंसीडर वन फंक्शन y इज इक्वल टू sin x. तो ये फंक्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा अभी, ठीक है. किसका ड्रॉ करूंगा ग्राफ? sin x का ग्राफ कैसा होता है वो मैं अभी ड्रॉ करूंगा. चलो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? First, you should know the amplitude of the given function. The amplitude means the coefficient of the given function. Amplitude means here the coefficient of the given function. What is the coefficient of the given function? Do you know? The coefficient of this sin x is 1. कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 है. Okay? So since the coefficient of this function is 1, therefore we can write the amplitude of the function is equal to 1. क्लियर? तो पहले एम्पलीट्यूड के बारे में जानना है. तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन भी मैं बोल दिया और भी एक शॉर्टकट डेफिनेशन दूंगा, दैट वन लेटर आई विल डिस्कस. लेकिन एक फंक्शन से एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है? इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल. द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन फंक्शन इज द एम्पलीट्यूड. ओके, अगर यहां पे 3 sin x रहता तो एम्पलीट्यूड विल बी 3. यहां पे अगर 2 sin x होता तो एम्पलीट्यूड विल बी 2. ओके, सिंस
here only sin x is there, that means the amplitude is only 1. So amplitude means the coefficient of the given trigonometric function. Okay, so this is the first step. Now the second step, जैसे कि क्लास 10 में हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें किसका किसका वैल्यू पता होना चाहिए ग्राफ में प्लॉट करने के लिए? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, यस और नॉट? इफ यू डोंट नो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, तो फिर कहां पे प्लॉट करेंगे? ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब ग्राफ के लिए तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा ना. सो द सेकेंड स्टेप टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, सो यहां पे वैल्यूज क्या क्या होगा? एक्स एंड वाई इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, यहां पे मैं एक्स और वाई का वैल्यू निकालूंगा अभी, और क्या क्या वैल्यू निकालना है वो भी मैं अभी बताऊंगा. एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहां पे मैं यहां से शुरू कर देता हूं. 0 when x is equal to 0, if x is equal to 0, the value of y is also 0, है ना, because the value of sin 0 is 0. अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मैं बीच से क्यों शुरू किया, मैं डायरेक्ट यहां से क्यों शुरू नहीं किया? बिकॉज नाउ एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिस्कस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस. जैसे कि हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन जब ड्रॉ करते हैं, तब ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पार्ट एंड दिस वन इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस पार्ट, राइट? तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, इसीलिए मैं बीच में लिखा ये वैल्यू 0 को. ठीक है, ओके. सो 0, आफ्टर 0 नेक्स्ट पाई बाई 2, नेक्स्ट पाई. यहां पे अगर यहां पे पाई बाई 2 है, देन दिस विल बी माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई. ओके, सिर्फ पाई तक लिखने से नहीं होगा, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल रिपीट इट्स वैल्यूज एट एन इंटरवल ऑफ 2 पाई रेडियन. तो सिर्फ पाई तक अगर निकालूंगा तो ये तो हाफ सर्कल कंप्लीट होगा, मतलब पीरियड पूरा कंप्लीट नहीं होगा. पीरियड मतलब एक 1 साइकिल कंप्लीट करना है कि नहीं? सो सिर्फ पाई तक वैल्यू निकालने से नहीं होगा. कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज अप टू ट्वाइस पाई, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन repeats its values at an interval of 2 pi radian. So you have to find the values up to 2 pi radian. Okay, so after pi, next 3 pi by 2 and then it will be twice pi. मैं quadrant wise लिखना है, ठीक है? quadrant wise लिखना पड़ेगा. 0 के बाद next 90, 90 to 180, 180 to 270 and then 270 to 360. ठीक है? So what's the value of sin 90? The value of sin 90 degree is 1. The value of sin 180 also you know, that is 0. The value of sin 270, the value of sin 270 का वैल्यू भी फाइंड आउट करना आता है तुम लोगों को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं, that is -1. The value of 360 degree is 0. Okay, 360 degree means sin 360 degree. ठीक है? So sin 360 degree का वैल्यू होता है 0. Now it's very simple. See, if you know the value of sin 90 degree, you can easily write down the value of sin minus 90 degree. Because we all know that sin of minus pi by 2 is equal to minus sin pi by 2. Yes or not? तो minus sin pi by 2 का वैल्यू क्या मिला? 1. तो इसीलिए sin of minus pi by 2 का वैल्यू हो जाएगा -1. Okay? What is the value of sin 180 degree? 0. Therefore sin of minus 180 degree is also 0. No need to write minus 0 because 0 is a neutral value. ठीक है? मैं नेगेटिव एंगल्स सिर्फ 2 ही लिया, लेकिन पॉजिटिव एंगल्स ट्वाइस पाई तक लिया. कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली 0 से लेकर ट्वाइस पाई तक अगर समझ में आया तो ये नेगेटिव पार्ट आराम से समझ में आएगा. वो मतलब अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है? मेनली 0 to ट्वाइस पाई तक ही ठीक से देखना है कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, so this is the second step to draw the graph of any trigonometric function. First step is find out the amplitude. So here the amplitude of the function is 1. Second step is find the x and y coordinates. So after getting the values of x and y coordinates, now draw the graph. Very interesting. Draw the graph of the
given function. So this is called what? Cartesian plane, or you can say xy plane. This is origin, this is negative x-axis, this is positive y-axis, this is negative y-axis. Now यहां पे ठीक से देखना पड़ेगा ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है. तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के बाद अभी एम्पलीट्यूड के बारे में देखना है. तो एम्पलीट्यूड यहां पे कितना है? 1. सो एम्पलीट्यूड 1 का मतलब है कि above x-axis 1 you have to write, below x-axis -1 you have to write. Means you have to take both positive and negative part of the amplitude. Okay? अगर यहाँ पे 2 sin x होता तो then you have to write here 2 and here -2. यहाँ पे अगर 3 sin x होता तो then you have to write here 3 and here -3. Above x-axis positive value, below x-axis negative value. ठीक है? Above x-axis positive value, below x-axis negative value. क्यों लिखना है ये एम्पलीट्यूड? This amplitude indicates that the graph of the function must oscillate. The graph of the function must oscillate between the 2 points. Between these 2 points. तो मतलब ग्राफ जैसा भी हो, जैसा भी वेवी कर्व शेप हो, ये 1 और -1 के बीच में ही होगा. ओके? ये है और एक डेफिनेशन एम्पलीट्यूड का. और यू कैन से द यूज ऑफ एम्पलीट्यूड. What is the use of amplitude? This amplitude indicates that the graph of the function must oscillate between the 2 points. ये 2 पॉइंट के बीच में ही जितना जो काम करना है, जो वेवी कर्व शेप आएगा वो ये 2 पॉइंट के बीच में ही आएगा. मीन्स यू कैन से इट इज द बाउंड्री और लिमिटेशन. 1 और -1 को क्रॉस नहीं करेगा. 1 और -1 तक ही होगा इसका लिमिटेशन. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ एम्पलीट्यूड. चलो अभी x का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिया? x का वैल्यूज 0, तो 0 मीन्स ओरिजिन, π/2. नेक्स्ट वन इज π/2. सो हियर आई एम राइटिंग π/2. नेक्स्ट पाई, नेक्स्ट 3π/2. नेक्स्ट वन इज ट्वाइस पाई. और नेगेटिव में मैं लिया -π/2 एंड -π. ओके, these are the values. And you know how to draw the graph. Because straight line का ग्राफ अगर ड्रॉ करना आता है तो इसका भी समझ में आ जाएगा. ठीक है? तो 0 में क्या होता है? 0. तो इसका मतलब मैं 0 से शुरू करूंगा. ठीक है? 0 से लेकर ट्वाइस पाई तक कंप्लीट करूंगा पहले. तो x कोऑर्डिनेट जब 0 है, y भी 0 है, तो मतलब वो पॉइंट ओरिजिन में ही रहेगा. वो पॉइंट ओरिजिन में ही रहेगा, है ना? ठीक है. π/2 में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होता है? 1. दैट मीन्स व्हेन x इज π/2, y इज 1. तो मतलब यहां पे होगा y कोऑर्डिनेट, राइट? व्हेन x इज पाई, द वैल्यू ऑफ y इज 0. मतलब 0 का मतलब तो यहां पे ही होगा, एग्जैक्टली x एक्सिस में होगा. ओके, 3π/2. दिस इज 3π/2. तो 3π/2 में y का वैल्यू होता है -1. दिस वन इज द -1. तो मतलब यहां पे होगा नेक्स्ट पार्ट. और ट्वाइस पाई में 0, तो मतलब एग्जैक्टली x एक्सिस में होगा. यस. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? यू हैव टू जॉइन द पॉइंट्स. यस. लुक एट द शेप नाउ. जब ज्वाइन करेंगे हम लोग, शेप तो ऐसा होगा, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां कंटिन्यू होगा, है ना? सो अभी एक चीज देखो, पीरियडिसिटी का, पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोला था? A periodic function is a function that repeats its values at regular intervals, which means one complete rotation is equal to 360 degree, we all know, and we know that all the trigonometric function repeats its values at an interval of 2π रेडियन. तो मतलब 2π रेडियन तक कंप्लीट होने के बाद फिर से वो वैल्यूज रिपीट होता है. मतलब 2π रेडियन तक एक सर्कल कंप्लीट करता है, एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड ए पीरियड. नाउ यू कैन चेक हियर फ्रॉम 0 to π. लुक एट हियर, फ्रॉम 0 to π, दिस इज कॉल्ड हाफ सर्कल, है ना? 0 से शुरू हुआ, फिर 0 तक खत्म हुआ, लेकिन वैल्यू रिपीट हुआ. इट्स करेक्ट ओनली. 0 में 0 होता है, 180 डिग्री में भी ये फंक्शन का वैल्यू 0 होता है.
वैल्यू तो रिपीट हुआ, लेकिन ये तो हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ ना, सिर्फ अबव द एक्स एक्सिस कंप्लीट हुआ. What do you mean by amplitude? Amplitude means it is the amount by which the graph of the function travels above or below its midline. Above or below its midline. This is the midline here. The midline means the horizontal line. So here the midline is x-axis, है ना? So 0 से लेकर 180 तक इसको बोला जाता है कि हाफ सर्कल. फिर 180 से 360 डिग्री तक जब कंप्लीट हुआ, मतलब मैं ये पोर्शन को, ये पाई टू ट्वाइस पाई, देख लो, पाई टू ट्वाइस पाई, ये पोर्शन को मैं काट के अगर यहां पे ज्वाइन कर दूंगा तो देन इट विल बिकम लाइक दिस ना, वन कंप्लीट सर्कल, है कि नहीं? ये पाई से लेकर ट्वाइस पाई तक मैं अगर काट के मैं यहां पे ज्वाइन कर दूं तो देन ओनली इट विल कंप्लीट वन सर्कल, एंड दैट वन सर्कल मींस ए पीरियड, राइट? So this is the graph of sin x, wavy curve shape. ठीक है, तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, तो मैं नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी बोल रहा था. तो नेगेटिव एंगल्स के बारे में क्या होगा? इट्स सिंपल ओनली. अगर पॉजिटिव पार्ट भी समझ में आया तो नेगेटिव पार्ट भी समझ में आ जाएगा. -π/2 में वैल्यू क्या होता है? -1. तो -π/2 में अगर वैल्यू -1 है, मतलब दिस वन इज -1, और -80 में 0, तो मतलब यहां पे, तो मतलब ये ग्राफ कैसा होगा? नीचे से ऊपर जाएगा. यस, ये ग्राफ नीचे से अभी ऊपर जाएगा. ओके, मैं यहां पे -180 तक लिखा, तो -360 तक लिखने से भी सेम होगा, मतलब -360 तक लिखने से ये अबव द एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि अगर 0 to -π में बिलो द एक्स एक्सिस हुआ तो ऑब्वियसली -π to -2π में ये अबव द एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, तो फिर जाके वन साइकिल कंप्लीट होगा ना. अभी मैं 0 से -80 तक यहां से काट के यहां पे बैठाऊंगा तो देन ओनली इट विल कंप्लीट वन साइकिल, राइट? So this is the graph of sine function. Okay, this is the graph of sine function. Now from this graph we can clearly say that the maximum value of the sine function is 1, whereas the minimum value of the sine function is -1. ये याद रखना है. जब मैं न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री का, तब मैं थोड़ा सा बता दिया था, हिंट दिया था कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू -1. लेकिन कैसे हुआ? दिस इज द एक्सप्लेनेशन. ओके, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -1. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो वी कैन इजिली से अनदर डेफिनेशन ऑफ पीरियड. So period means it is the distance between the two peaks. This is one peak, this is one peak, and this one is another peak, है ना? It is the distance between the two peak. Okay, so this is all about sine function. So if you know how to draw the graph of sin x, you can easily draw the graph of cos x, tan x, or any other functions. Okay. So now take a look at the graph of tan x. साइन एक्स का मैं एक्सप्लेन किया, तो साइन एक्स का समझ में आया तो यू कैन यूज इजिली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट tan x. तो मैं अभी tan x का क्यों डिस्कस करूंगा, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि tan x में ना इन्फिनिटी बोल के भी इसका वैल्यू आता है. साइन और कॉस में ऐसा अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आता है. द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री इज अनडिफाइंड, है ना? तो अगर अनडिफाइंड रिजल्ट है तो ग्राफ कैसा होगा? ओके, वो रीजन के लिए मैं ये tan फंक्शन को चूज किया, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा. ठीक है, सो वट एवर मे बी साइन और tan और cot और sec फंक्शन और cosec फंक्शन, द फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन. सो बिकॉज व्हाई वी नीड टू टेक एम्पलीट्यूड, वो भी रीजन में बताया. बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड यू हैव टू डिवाइड द इंटरवल. ठीक है, सो हियर ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन इज 1 ओनली. ओके, सो tan, यहां पे तो फंक्शन tan है, तो tan कितना डिग्री में 1 होता है? वी ऑल नो दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 45 से सब
एंगल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि साइन एक्स में 45 से मैं डिवाइड नहीं किया, 0 देन 90 डिग्री देन 180 देन 270 देन 360। वाई? मैं क्वाड्रेंट वाइज क्यों मूव किया? क्योंकि साइन एक्स का भी एम्पलीट्यूड 1 था, तो साइन 90 डिग्री में 1 आता है, तो मतलब 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है, फिर नेक्स्ट 90, फिर नेक्स्ट 90 देन 90, तो इसलिए 90 90 90 करके मूव हुआ था साइन एक्स में। कोसाइन कॉस एक्स में भी सेम, कोसाइन फंक्शन का भी रूल सेम है, ठीक है। वो एम्पलीट्यूड का और एक बेनिफिट है, ये बेनिफिट क्या है? बेनिफिट एम्पलीट्यूड पता होने से कितना कितना रेंज लेना पड़ेगा, मतलब एक्स का वैल्यूज जो लेना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एक्स का वैल्यूज जो लेना है कितना कितना डिफरेंस में लेना पड़ेगा, वो डिफरेंस भी पता चल जाता है। लास्ट केस में 0 90 180 270 360 लिया था, बिकॉज साइन 90 डिग्री में वैल्यू होता है 1 और एम्पलीट्यूड भी था 1, बट यहां पे 10, यहां पे भी एम्पलीट्यूड 1 है, बट वी नो द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री इज 1, तो मतलब यहां पे जो छोटा छोटा वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसको 45 45 45 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा, नॉट लाइक 90 90 90। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी मेनी वैल्यूज आर देयर, बहुत सारा मोर वैल्यूज आर देयर हियर। ओके, इफ यू कंपेयर इट विथ द प्रीवियस फंक्शन, on that previous function only 4 values were there, but here more values are there। ठीक है, क्या क्या लिया देखो, 0 तो लेना ही पड़ेगा, 0 के बाद नेक्स्ट में π/2 नहीं लिया, π/4 आ गया। क्यों? बिकॉज 45 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, एम्पलीट्यूड 1 है और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 45 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, नॉट 90 डिग्री। ओके, सो आफ्टर 0 दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री, तो नेक्स्ट 45 और ऐड करने से हो जाएगा 90, नेक्स्ट 90 और ऐड कर, सॉरी नेक्स्ट और 45 ऐड करने से 90 प्लस 45 135, दैट्स व्हाई 3π/4, 135 के साथ और 45 ऐड करने से हो जाता है 180, लाइक दिस अप टू 360 you have to write, and you know all the trigonometric functions repeats its values at an interval of 2π रेडियन, तो हमेशा 2π तक तो लिखना ही पड़ेगा, whether it is a sin function or cosine function or tan function, whatever may be the function। ठीक है, so mainly you have to check from 0 to twice pi। बाकी तो ये तो नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अगर पॉजिटिव पार्ट समझ में आया तो। ओके, सो दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। देन वन मोर थिंग, whenever you have to write the x coordinate, then don't write the x coordinate in terms of degree measure। Okay, in case of periodicity, write the x coordinates in radian measure always। जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ना, तभी पीरियडिसिटी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हमेशा रेडियन मेजर में ही होता है, वैल्यूज डिग्री मेजर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू राइट ऑलवेज इन रेडियन मेजर, नो नीड टू राइट, डोंट राइट इन डिग्री मेजर। So now look at the graph, it's very interesting, these are, so as per the table put all the values, as per the table put all the values, so this is origin, after that then π/4, next π/2, next 3π/4 बहुत बड़ा होगा, पाई 5π/4, बहुत ज्यादा गैप हो गया, so origin, then this is π/4, π/2, 3π/4, pi, 5π/4, 3π/2, 7π/4, then twice pi। Okay, this is positive x-axis, positive y-axis, negative y-axis। After that immediately write down the amplitude, okay, that is the two peaks, 1 and here -1। Okay, and so then you write down the negative part, minus π/4, minus π/2, minus 3π/4, minus pi,
माइनस 5π/4 माइनस 3π/2। तो यहां पे मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में पूरा माइनस ट्वाइस पाई तक नहीं लिखा, सो अप टू माइनस थ्राइस π/2 तक ही लिखा, ठीक है। सो माइनस थ्राइस π/2 तक अगर समझ में आया तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नाउ you have to check how many undefined results are there and in which angles। कौन सा एंगल में undefined मतलब इंफिनिटी वैल्यू आया, इनफाइनाइट वैल्यू आया। वन इज इन माइनस 3π/2, यस, इन माइनस 3π/2 रिजल्ट मिला माइनस इंफिनिटी। तो जो एंगल में इनफाइनाइट रिजल्ट आया पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। उसका तो कोई ग्राफ नहीं होगा एक्चुअली, उसको ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जो एंगल में इनफाइनाइट वैल्यू आया, सो माइनस 3π/2 में आया, देन माइनस π/2, सो माइनस π/2 में भी फिर इसका ग्राफ मीन्स डॉटेड लाइन। नेक्स्ट π/2, सो π/2 में भी ऐसा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है बिकॉज इसमें इनफाइनाइट रिजल्ट है। आफ्टर π/2 नेक्स्ट 3π/2, 3π/2 में भी ऐसा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखना है जो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इनफाइनाइट वैल्यू होता है पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना चाहिए। ग्राफ मतलब डॉटेड स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है, डॉटेड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दीज आर द 4 अनडिफाइंड रिजल्ट्स। इसका कोई मतलब और काम नहीं है, सिर्फ सिंपली नॉर्मल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट यू चेक 1 by 1 वैल्यू। माइनस 5π/4 में वैल्यू क्या है? When x equal to minus 5π/4, the value of y is minus 1. So this is minus 5π/4. This is minus 5π/4. तो यहाँ पे वैल्यू मिला मुझे -1, तो यहाँ पे होगा -1, नीचे है, ओके। At pi minus pi, the value is 0. तो मतलब एग्जैक्टली एक्स एक्सिस में ही होगा, ओके। At minus 3π/4, वैल्यू इज 1. So minus 3π/4 में वैल्यू है 1, तो मतलब यहाँ पे होगा, ओके। सो यहां तक ड्रॉ करने के बाद देखो दो डॉटेड लाइन के बीच में ये 3 पॉइंट्स आ गया। तो जब ये दो डॉटेड लाइन के बीच में 3 पॉइंट्स आ गया तो इमीडिएटली यू हैव टू ज्वाइन द पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे ज्वाइन करना है, जैसे नॉर्मली ज्वाइन करते हैं वैसे ज्वाइन करना है, ओके। दिस लाइन, रिमेंबर दिस लाइन शुड नॉट टच द डॉटेड लाइन बिकॉज अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है तो इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, जब ग्राफ ड्रॉ करना है ये डॉटेड लाइन के साथ कनेक्शन मतलब ज्वाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो आफ्टर माइनस 3π/4 देन माइनस π/2, तो ऑलरेडी माइनस π/2 का तो डॉटेड लाइन दे दिया। सो आफ्टर माइनस π/2 नेक्स्ट वैल्यू इज -1। एट माइनस π/4 द वैल्यू इज -1, तो इसमें होगा -1। चलो यहाँ पे -1 है तो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा -1। एट 0 y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0, मतलब यहां पे होगा। एट π/4 द वैल्यू इज 1, π/4 में होता है वैल्यू 1। चलो यहां तक आ गया, तो फिर से इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब लाइन ज्वाइन करना है अभी पॉइंट्स को। इट्स वेरी सिंपल, लाइक दिस यू हैव टू ज्वाइन, लाइक दिस यू हैव टू ज्वाइन, ठीक है। शुड नॉट टच दिस लाइन, डॉटेड लाइन, ओके। सो आफ्टर π/4 नेक्स्ट वैल्यू इज π/2, सो एट π/2 इट इज इंफिनिटी, सो ये तो ऑलरेडी हो गया। 3π/4 में है -1, फिर से 3π/4 में चेक करते हैं -1। सो 3π/4 में है -1, तो मतलब यहां पे होगा -1। पाई में है 0, मतलब यहां पे होगा। 5π/4 में है 1, मतलब यहां पे होगा। फिर से ज्वाइन करना है इसको, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जाता है, थोड़ा स्ट्रेट होगा, okay। So after the 3π/2, at 3π/2 it is undefined, so already हो गया। 7π/4 में है -1, 7π/4 में है -1। Look at the last parts, very important। At 7π/4 it is -1, it is -1, okay। And at 2π it is 0। So after 2π this value will repeat again, so that's why up to 2π only you have to draw। Now look at the graph, it is like incomplete shape graph, right। दिखने में लग रहा है कि इनकम्प्लीट, क्योंकि ये 2π तक यहां पे आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, है कि नहीं, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि द पीरियड ऑफ 10 फंक्शन, द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज
पाई, नॉट ट्वाइस पाई। क्यों? क्योंकि ये आधा तक आया ना, ये ऊपर तो नहीं गया। देखो जब नीचे से ऊपर above the x axis is called half circle, below the x axis is called another half circle. So when we join the two parts above और below x axis को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, then only it will complete one circle and that is called a period. तो यहाँ पे 10x का देखो कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे से यहां तक ही आया, मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ, तो मतलब ट्वाइस पाई तक ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये 10 फंक्शन का पीरियड होता है ऑलवेज पाई। ठीक है, तो जब in the next class I will discuss the numericals based on the periodicity of trigonometry. तो that time I will give all the values, all the formulas. ठीक है, today I have discussed all the graphs, क्योंकि ग्राफ अगर समझ में आया तो वैल्यूज जब लिखूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किसका कितना होता है पीरियड। सो फ्रॉम द टू ग्राफ्स टिल नाउ टुडे आई हैव डिस्कस ओनली टू फंक्शंस, द ग्राफ ऑफ sin x एंड द ग्राफ ऑफ tan x। तो sin x का तो फिर पीरियड क्या होगा? द पीरियड ऑफ sin x इज ट्वाइस पाई, क्योंकि ट्वाइस पाई में वो कंप्लीट होता है वन सर्कल, है ना। तो द पीरियड ऑफ sin x इज ट्वाइस पाई। सो cos x का भी होता है ट्वाइस पाई। यू जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ दैट cos x, ठीक है। बट द पीरियड ऑफ tan x इज पाई, याद रखना है, ठीक है। मेनी रिजल्ट्स आर देयर, मेनी फॉर्मूलाज आर देयर। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव दोज फॉर्मूला as well as I will discuss the numericals based on the periodicity of trigonometry. So thank you for today.